Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all have enjoyed your autumn break and you have enjoyed your festival. And now it's time for video classes. Children, you must be knowing that we are doing Unit 4, that is multiplication of your maths textbook. In today's video, we are going to do a fun term activity as well as multiplication without carrying, that is by one digit number. Okay, children, one thing I would like to tell you that when we multiply anything by 0, answer is 0. When anything is multiplied to 0, it will give result 0 only. प्लीज कीप दिस इन माइंड. आप जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 0. ठीक है, चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 80 देयर इज एन एक्टिविटी कॉल्ड फन टाइम. It is written that play this game with your friends and find out who takes less or least time to go from waterfall to the village. There's a picture given. There's a waterfall at one corner of the picture on the top, and there is a village at the bottom of the picture. And some multiplication sums are given, multiplication numbers are given. You have to play this game with your friends and you have to find out who takes less time to reach the village. And since this is your video class, we cannot play this game here, so I will be doing this multiplication on your behalf. You can play this at your home with your friends, with your siblings. अपने brothers and sisters के साथ आप खेल सकते हो. Here I will be solving that multiplication for you. Okay, so as you can see that in that picture there is a waterfall and some multiplications are given. Let's start solving this. I will not draw the waterfall, but I will write the sums that are written. It is fun time. Six multiplied by 7. First one is 6 multiplied by 7. Then it is 3 multiplied by 5. मतलब ये है कि कौन सबसे पहले ये सारा मल्टीप्लाई कर लेगा और फटाफट पहुंच जाएगा विलेज में. हु डज द फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये आप घर पे अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स के साथ खेल सकते हो. यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर्स करके दिखा रही हूँ. देन 2 multiplied by 7, 5 multiplied by 8, 4 multiplied by 6, then 6 multiplied by 5, 4 multiplied by 9, 3 multiplied by 8, 10 multiplied by 10, 8 multiplied by 7, then 1 multiplied by 0, 10 multiplied by 3, 7 multiplied by 6, 3 multiplied by 7, 9 multiplied by 9, then 7 multiplied by 3. What else? Okay, let's do these first. इसको हम फटाफट कर लेते हैं, क्या आंसर आता है. Let's check. ये आपको देखना है कि कौन सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है. एक्चुअली द गेम इज अबाउट हु डज द फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन. तो मैं आपको सिर्फ आंसर अभी बता रही हूँ. 6 7 जो सबसे पहले बताएगा that child will get the point. So 6 7 42.
3 5s are 15. 2 7s are 14. Children, the game is about the person, the child, the student who does the फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो क्योंकि मैं यहाँ कर रही हूँ आपके भी हाफ में, आप तो 4-5 लोग मिलके बैठ के करो, तो मैं आपको समझा के कर रही हूँ. 6 5s are 30, 4 9s are 36, 3 8s are 24, 10 10s are 100, 1 zeros are 0. I have told you, when anything is multiplied with 0, answer will be 0 only. 8 7s are 56, 10 3s are 30, 7 6 are 42, 3 7s are 21, 9 9s are 81, 4 6 are 24, 5 8s are 40, 3 7s are 21, and we have solved this. तो जितना टाइम लगा, अब आपने टाइम नोट किया, अब दूसरा कोई है उसको बोलिए उसने कितने मिनट में किया. इस तरह से जो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सबसे कम समय में ये सारा सॉल्व करेगा और वाटरफॉल से सीधा विलेज तक पहुंचेगा. इस तरफ एक वाटरफॉल बना हुआ है और यहाँ नीचे एक विलेज बना है. तो जो जितनी जल्दी जितनी फास्ट मल्टीप्लाई करेगा वो उतनी जल्दी वाटरफॉल से विलेज तक पहुंचेगा. तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन जो टेबल है वो लर्न करना जरूरी है. अगर वो आपको लर्न होगा, जिसको भी अच्छे से लर्न होगा, वो फटाफट ये मल्टीप्लाई करेगा और वो गेम जीत सकता है. कम से कम समय में आपको सारा ये मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, गेम इज अबाउट डूइंग फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज ओवर. विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, okay children, the next exercise is multiplication without carrying. multiplication multiplication without carrying. Multiplication without carrying. And by one digit number. By one digit number. Okay. The multiplication sums will be without carrying and multiplication will be by one digit number only. Okay. So let's do the sums here. Multiply ones and tens. Whenever we start something new, we must write the places also, so that the concept will be more clear to you. So it's better that you write the places also while doing any new exercise. Okay, so ones, tens we will write 2 multiply by 2. Children, here you can see that it is by one digit number only. 2 is a single digit number and we are doing it by one digit number. And all these multiplication, whatever we are going to do, will be without carrying. No carrying will be there. Ones, tens, 2, 3, multiply by 3. Then ones, tens, 5, 8, multiply by 1. Then ones, tens, 3, 2, multiply by 2. Then ones, tens, 2, 4, multiply by 2. Ones, tens, 3, 4, multiply by 2. Then
1, 2 multiply by 3. Since all these multiplication are without carrying, that's why the digits which are taken here for multiplication are of smaller value. Either they are 2, 3, 1 like this only. Okay. इससे ज्यादा अगर वैल्यू का नंबर लेंगे देन इट विल बिकम मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैरी, फिर वो कैरी वाला हो जाएगा, इसलिए कम डिजिट का लिया है. सो नेक्स्ट वन इज 1, 2 by 4. Children, you can see that the values of the number is 2, 3, 1, not more than that. Why? Because we are doing these multiplication without carrying. जैसे ही हम नंबर की वैल्यू बढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन में कैरी ओवर वाला आ जाएगा, इसीलिए. सो all these sums are quite easy. If you'll try, बहुत easy है. Let's do this. आपको मैं बताते जाऊंगी and you will be able to do yourself. और बहुत आराम से इसे खुद से कर पाएंगे. ठीक है, देखिए बस आपको टेबल्स आने चाहिए और ये तो बहुत इजी वाले हैं, बिगिनिंग वाले 2 और 3 के टेबल्स हैं. मैक्सिमम 4 का इसमें टेबल है अभी, जितना मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है. सो लेट्स सी 2. व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको 42 को एक साथ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, आप ये जो नंबर आप देख रहे हैं 42, तो आपको एक साथ 42 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू 1 by 1. स्टार्ट विथ वंस एंड देन मूव ऑन टू टेंस. अब वंस से स्टार्ट करो और फिर टेंस वाले को करो. पहले क्या करना है, वंस से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद टेंस से. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वंस है और ये टेंस है. वंस की प्लेस पर 2 है और टेंस की प्लेस पर 4 है. तो पहले ये वाला जो 2 है जिससे कि मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, वो पहले वंस को मल्टीप्लाई करेगा. जो आंसर आएगा वो वंस के नीचे लिखना है. फिर ये टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो नीचे लिखेंगे. सो स्टार्ट. 2 2s are 2 2s are 4. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s are 4 and we will write here 4, क्योंकि ये वंस था, नंबर वंस है और वंस का आंसर हमने वंस के नीचे लिख दिया. नाउ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 2 4s are या 4 2s are, both the way answer will be same. 4 2s are या 2 4s are. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है. 4 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 4 2s, 4 टाइम 2s. सो 4 2s आर 8. तो ये टेंस है तो हम यहाँ 8 इधर लिखेंगे. पहले हमने 2 को इससे मतलब वंस को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने टेंस को मल्टीप्लाई किया. वंस का आंसर वंस के नीचे, टेंस का आंसर टेंस के नीचे. सो 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 84. आंसर आया हमारा 84. Similarly, here also 3 3s are 3 3s are 3 3s are 9. 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई किया, पहले वंस को 3 से किया, फिर टेंस को करेंगे. वंस को किया तो कितना आया 9. 3 3s are 9. क्योंकि ये वंस था तो वंस का आंसर वंस के नीचे लिखेंगे. नाउ 2 3s are 6. तो क्योंकि ये टेंस को हमने मल्टीप्लाई किया था तो आंसर हमारा जो आएगा वो हम टेंस के ही नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड आंसर क्या हुआ, 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 69. ठीक है, नेक्स्ट. अब इधर देखिए 5 and 8. 8 is ones, 5 is tens. तो पहले वंस को करेंगे. 1 है ना, तो 8 ones are 8 and वंस के नीचे ही इसको लिखेंगे. Now 5 ones are 5.
ओके, आंसर इज 58 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 58। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम वही आंसर मिलता है। 1 से आप कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। 1 into 2 2, 1 into 5 5, 1 into 6 6, 1 multiplied by 100 100, 1 multiplied by 1000 1000, you will get the same answer। 1 से कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वही आंसर मिलेगा। ठीक है, 1 multiplied by 1000 will be 1000 only, 1 multiplied by 9 will be 9 only, 1 multiplied by 12 आंसर विल बी 12 ओनली। सिमिलरली जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। ये आपको ये दो चीजें आप अपने ध्यान में रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम, 3 and 2 32 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। सो पहले वंस को 2 2s are 2 2s are 4, एंड सिंस ये हमने वंस को से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर वंस के नीचे भी लिखेंगे। टेंस 3 2s are 3 2s are 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2s are 6। तो ये टेंस को हमने किया है तो टेंस का आंसर टेंस के नीचे। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64, आंसर इज 64। नेक्स्ट अगेन वंस को हम पहले करेंगे। 4 2s are 8, और 8 को हम वंस के नीचे ही लिखेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे वंस है। नाउ 2 2s are 4, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 48। ओके, नेक्स्ट अगेन पहले वंस से ही शुरू करेंगे। हमेशा आपने जो देखा होगा जब हमने एडिशन वाले सम्स किए थे हमने वंस से स्टार्ट किया था, जब हमने सब्ट्रैक्शन वाला शुरू किया था तो भी हमने वंस से स्टार्ट किया था। तो हमेशा वंस से ही आप मैथ्स में यहां से स्टार्ट करते हैं, टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो 4 2s are 8, and we will write under the column of ones। 3 2s are 6, and this we will write under the column of tens। So 34 multiplied by 2 is 68। Next, ones, tens I have not written, let me write it here, ones and tens। Let's start with ones। 2 3s are 6, 1 3s are 3। ठीक है, चलिए 2 4s are 8, 1 4s are 4। So here 12 multiplied by 3 is 36, and here 12 multiplied by 4 is 48। आई होप ये आपको समझ में आया, जितने भी हमने ये सम्स किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरह से हम वंस को पहले करेंगे और फिर उसके बाद फिर टेंस को करेंगे और आंसर को उसी फिर कॉलम में अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे। वंस वाले को वंस के कॉलम में और टेंस वाले को टेंस के कॉलम में। चलिए कुछ और सम्स कर लेते हैं। Now ones, tens, 1 1 multiplied by 6, then ones, tens, 2 2 multiplied by 4, then ones, tens, 2 2 multiplied by 2, ones, tens, 4 1 multiplied by 2, ones, tens, 2 2 multiplied by 3,
Now, ones, tens, three, zero, multiply by two. Ones, tens, 8, 5, multiply by 0. Then ones, tens, 7, 9, multiply by 1. Ones, tens, 4, 4, multiply by 2. Ones, tens, 3, 3, multiply by 3. Okay, these are all multiplication sums without carrying, and all these are of single digit. सारे ही सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, जितने भी हैं ये सारे बिना कैरी वाले हैं, विदाउट कैरिंग वाले हैं, जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो किया था सारे उसी टाइप के हैं. बस आपको 2, 3 का टेबल आना चाहिए. बहुत इजी वैल्यू वाले हैं. अगर एक 6 का भी टेबल है, बट दैट टू ओनली 1 तक है, इसलिए बहुत कम वैल्यू वाले हैं और बहुत ही आपको ये कन्वीनियंटली बहुत आसानी से आप ये सारे कर पाएंगे. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आपको वैसे ही स्टार्ट करना है. आपको वंस से स्टार्ट करना है और फिर टेंस के उधर मूव करना है. वंस का आंसर आप वंस के कॉलम में लिखेंगे और टेंस वाला टेंस के. चलिए पहले वंस का. 1 6 are 6 and here also 1 6 are 6. बस वंस वाला वंस के कॉलम में, टेंस वाला टेंस के कॉलम में. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 66. नेक्स्ट वंस से स्टार्ट कर रहे हैं. 2 4s are 8. Again 2 4s are 8. Children, you can do 4 2s are or 2 4s are. Both the way it is correct. Answer is 88. 22 multiplied by 4 is 88. Here also 2 2s are 4. 2 2s are 4. Answer is 44. But this 4 is tens and this 4 is ones. इसीलिए टेंस, ये 4 टेंस है इसलिए 40 बोलेंगे और ये वंस है इसलिए 4. सो आंसर इज 44. नेक्स्ट, नाउ 2 1s are या 1 2s are. Both the way answer is same. So 1 2s are या 2 1s are 2. 4 2s are या 2 4s are 8. Answer is 82. मतलब 41 multiplied by 2 is 82. Here 8 is tens, that's why we are calling it 80. 2 is ones, so it is 2. 82. ये 8 को हम 80 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेंस की प्लेस पर है. 8 टेंस है. 8 tens is 80 and 2 82. Next, 2 3s are 6. 2 3s are 6. 22 multiplied by 3 is 66. Both numbers are 6, but one 6 is tens and another 6 is ones. जो tens है उसको, उस 6 को हम 60 बोल रहे हैं, तो 66. आंसर इज 66. नाउ नेक्स्ट वन. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है. बिल्कुल ये जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था बिल्कुल उसी तरह से है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड लेफ्ट. ठीक है. और इसमें भी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है. जो जिस प्लेस पर जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है. अगर टेंस की प्लेस पर है तो टेंस के अकॉर्डिंग है, और अगर वंस की प्लेस पर है तो वंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है. बस सेम वही प्रोसीजर है. बस यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन
अभी नहीं करना है। ठीक, चलिए मूव करें। 2 zeros are 0 because when you multiply anything with 0 you will get 0। और क्योंकि ये वंस है, ये 0 नहीं है, ये वंस है, तो वंस को हम वंस के नीचे ही लिखेंगे। 2 3s are या 3 2s are 6। This 6 is tens, so we are calling it 60। उसको हम कहेंगे 60। नेक्स्ट, एज आई हैव टोल्ड यू, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 0। 0 5s are 0, 8 zeros are 0। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? 0। आंसर विल बी 0 क्योंकि हमने 0 से ही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है एंड यू विल गेट नथिंग, दैट इज 0 0। यहाँ कितना भी बड़ा नंबर होगा, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर विल बी 0 ओनली। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे तो अगर हम बहुत बड़ा नंबर लिख देंगे तो 0 नहीं होगा। नो, कितने भी वैल्यू का नंबर यहाँ लिखा होगा, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0 ओनली। उस जो भी बड़ा कितने भी बड़ी वैल्यू का नंबर होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होते ही वो 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए 9 1s are 9 1s are या फिर 1 9s are, both the way you will get 9 only। 9 को 1 टाइम लिखोगे या 1 को 9 टाइम लिखोगे, आंसर आपका 9 ही रहेगा और ये वंस के कॉलम में है। नाउ 7 1s are 7 1s are या 1 7s are 7, मतलब 7 को आप एक बार लिखो या 1 को 7 टाइम्स लिखो, आंसर विल बी 7 only। So 79 multiplied by 1 is 79 only। 79 को एक बार लिखो तो भी 79 और 1 को 79 टाइम्स लिखोगे तो भी 79। ओके, चलिए 2 2s are 4, नहीं सॉरी 2 4s are करना है। 2 4s are 8, अगेन 2 4s are 8। आंसर हमारा दोनों 8 आया लेकिन वैल्यू अलग है। दिस 8 is 80, दिस 8 is 8, 88। एक 8 जो है वो 80 है क्योंकि वो टेंस की प्लेस पर है और दूसरा 8 जो है वो 1 से है इसलिए वो 8 ही है, तो 88। आंसर विल बी 88। ओके, नेक्स्ट 3 3s are 3 3s are 9। नेक्स्ट नंबर भी हमारा 3 ही है, सो 3 3s are 9। आंसर इज 99। दिस 9 is 90 and another one is 9। आंसर इज 99। 33 multiplied by 3 is 99। तो ये हमने सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन किया विदाउट कैरी वाला। ठीक है, बट जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के जो और भी जो सम्स हैं हमारे मल्टीप्लाई वाले, उसमें हम अभी जो करेंगे सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। अभी हमने 2 डिजिट से किया था, मतलब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था बाय सिंगल डिजिट। अब हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय सिंगल डिजिट ओनली। ओके, मल्टीप्लाई हम करेंगे सिंगल डिजिट से ही, लेकिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये भी बिना कैरी वाले ही हैं, बिना कैरी वाले ही हम करेंगे। अभी कैरी वाला हम अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, वो कैरी वाला अभी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, कैरी वाला अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम कैरी वाला अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी आपका बिना कैरी वाला ही है, पर हमको करना अभी 2 डिजिट किया था, बस अब 3 डिजिट, हम 1 डिजिट बढ़ा देंगे बस।
और मल्टीप्लाई लेकिन सिंगल डिजिट से ही होगा। तो पर हम ये स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मतलब अभी हमें 2 डिजिट किया, अब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको मैं समझा दे रही हूँ सर, 1s 10s 100 आप लिखेंगे, ठीक है। 2 1 3 है, मल्टीप्लाई बाय मान लीजिए 2 है। इसका मतलब ये जो हमारे डिजिट्स है वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मल्टीपल होगा बाय 1 डिजिट नंबर ओनली, मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर से ही हो। और ये मल्टीप्लिकेशन भी बिना कैरी वाला ही होगा। कैरिंग वाला मल्टीप्लिकेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, पर ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इसको करेंगे। ओके, थैंक यू।